Okay, now we are here. So first of all, good morning to all teachers Good morning. and delegates. So it is an opportunity for me, I myself, Rakesh Kumar Sinha, to present to you in behalf of Sanskar International School. So this is my opportunity that we are going to avail this opportunity in front of you. That is the first session of your COE training program. So this is the excellent given by management that we are going to provide you today, and the topic is now language skills. Okay. First we have to understand about skills. So gentlemen, ladies and gentlemen, the skills we are knowing about, the term which is known as a Hindi, that is causal. Everything skills is important in my life as we are professional like teachers, businessmen or corporate officers. So we have to find out which one is skill is very important in our day-to-day life. So one of the skill is language skills. So today we have elaborating this language skills in front of you and trying to give you full information which is very needed regarding your knowledge. Apart from that, we have also given the knowledge about communication skills, how it is different from communication skill and language skills. Communication is a word when we interact with one to another. When we interact with one to another. Language doesn't mean to interact with each other. Language is not a barrier for communication. Communication is a word when you present your idea, your thought, opinion in front of anybody without language. Suppose somebody is knowing about Hindi, English, any other languages available in India, but there is no need for communication, that is English language is must or Hindi language is must. So there is a big difference. But communication is a very vital part when your language is concerned. Because somebody is following you. When you communicate with anybody, so must be followed you. If somebody is following it means that somebody is connecting with you. So connection is very much required. But in language it is not required. Connection, somebody is connected with you, that's why they are following you. That is communication part. But there is not a need in language. When you give any language, there is no need of connections. You just provide in communication in any language. So today, opportunity to avail skills in another form, that is the language skills. So first of all, language skills. What is the language skill? It means the development of 4 basic skills. Language skills including listening, speaking, reading and writing. There are 4 skills which is interconnected with language skills. Please switch off your mobile. I request all of you. So term here is listening, speaking, reading as well as writing, and they all communicate is known as a language skills. So what is listening skill? That is semantic aspect of language. Semantic means when we listen the something which is provided by a speaker, that is known as a semantic aspect of language. Second is speaking. Speaking means just from the sound. If you heard any sound from somebody, it means it is a phonetic aspect. First one was listening, that is the semantic. जब आप listen करते हैं, somebody is speaking and you are just following them, that is listening. It is called semantic. But speaking is a phonetic aspect, where sound is very important. Reading is phonetic cum graphic. Phonetic means phonetic sound and as well as graphic, जहाँ पर आप writing करते हैं. Graphic means writing.
So both reading is a skill where you provide phonetic as well as graphic. जहाँ पर आप sound as well as writing दोनों को aspect समझते हैं. But fourth is writing. Writing is concerned with only graphic aspect. So first is semantic, second is phonetic, third is phonetic cum graphic. Please, teachers, I request, please concentrate because at the end of this session, I will raise many questions to you, and it can be solved when you learn the things properly. Understand? So there are 4 skills. Language skills is listening, speaking, reading and writing. Speaking is semantic, listening is semantic, speaking is phonetic, reading is phonetic cum graphic, and writing is a graphic aspect of language. Now we just elaborate language skills, that is listening, speaking, reading, writing. So this is a sequence, LSRW. This is the sequence. First comes listening, second is speaking, then reading and writing. जैसे कि कोई बच्चे जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उनको कौन सा चीज सिखाया जाता है, दैट इज लिसनिंग. यानी माँ जो है उसको सबसे पहले लोरी गाती है या स्टोरी बताती है, तो वो बच्चा जो है he or she is not doing anything and the skill is concerned. But the first primary stage, listening is important for any person or animals. Speaking, उसके बाद जो है जो सीक्वेंस है वो स्पीकिंग आते हैं, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग. सो ये जो सीक्वेंस है ऐसा नहीं हो सकता है कि लिसनिंग पहले आ जाए, उसके बाद राइटिंग तुरंत आ जाए, उसके बाद स्पीकिंग या रीडिंग आए. सो दिस इज द सीक्वेंस. पहले आपको लिसनिंग होगा आपके लाइफ में, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग. जैसे आप क्लास लेते हैं एज ए टीचर, तो बच्चे सबसे पहले आपके जो भी स्पीच है, जो स्पीक आप करते हैं उसको लिसन करते हैं, है ना. उसके बाद वो साउंड को सुनते हैं, उसके बाद उसको रीडिंग करने का मौका मिला था, तब आप उसको एम्फेसिस करते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न, जस्ट ट्राई टू राइट. सो ब्रीफिंग लैंग्वेज स्किल इन सीक्वेंस LSRW. अब नाउ द क्वेश्चन इज द फर्स्ट टू थिंग इज लिसनिंग एंड रीडिंग. ये चार चीज में लिसनिंग एंड रीडिंग इज कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल्स. When you perceive something, मतलब कोई आदमी आपको कुछ बोल रहा है और सिर्फ आप उसको सुन रहे हैं, आप अपने कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. You are not giving, you are just passive. आप कोई बोल रहा है, that is active form. लेकिन जब आप सुन रहे हैं सिर्फ, that is passive form. तो listening और reading ये चार जो एबिलिटी है, स्किल्स है, उसमें से listening and reading is a receptive skill, जो कि आप कान से सुन करके ही करते हैं. But speaking and writing is called generative, which is a productive. हर एक आदमी जो है अपने लाइफ में स्पीकिंग के लिए उसको खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है. जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे, आप जब तक जनरेट नहीं करेंगे, आप जब तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है. लेकिन लिसनिंग और रीडिंग में आप किससे हेल्प लेते हैं, somebody जो स्पीकर है उससे आपको हेल्प मिल जाता है. रीडिंग जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है वो आप बदल नहीं सकते. आप जब रीडिंग करते हैं तो उसी चीज को पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है. लेकिन स्पीकिंग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज द जनरेशन बाय माई सेल्फ. ये मैंने अपने से जनरेट किया है, मैंने प्रोड्यूस किया है. तो मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि देयर आर 4 स्किल्स. लिसनिंग एंड रीडिंग इज ए रिसेप्टिव स्किल, दैट इज पैसिव स्किल, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन स्पीकिंग एंड राइटिंग, जहां तक स्पीकिंग की बात है, आपको ही आगे बढ़ करके बोलना पड़ता है. राइटिंग आप ही को लिखना पड़ता है. जैसे मैं बच्चे को अगर कोई होमवर्क देता हूं तो nobody helps them. He or she has to write their answers only. So these two language, whether it is a speaking or writing is concerned, that is known as a active. This is the active, but passive is receptive skills. So जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे लैंग्वेज में बोलेंगे लिसनिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्पीकिंग एंड राइटिंग बोलेंगे. लेकिन जो आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ आप उसको सुनते हैं, वो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है. ओके, गॉट माय पॉइंट? सो हियर इज
language has 4 basic skills, that is LSR, W sequence. The development of these skills must be their sequential. एक sequence में होना जरूरी है और it is in integrated form. Integrated means क्या होता है, सब एक दूसरे से linked है. अगर हम सिर्फ स्पीकिंग की बात करें या सिर्फ लिसनिंग की बात करें या सिर्फ राइटिंग की बात करें, ये जीवन में अकेला नहीं हो सकता है. जब तक आप लिसन नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो आपकी ये जो लैंग्वेज स्किल है वो नहीं आएगा. दिस इज इंटीग्रेटेड, नॉट आइसोलेटेड. ये ऐसा नहीं स्किल है कि आप कोई एक जो स्किल्स है वही सिर्फ आप में, आप में चारों स्किल्स है और चारों स्किल्स आपको डेवलप करना जरूरी है. ओके, now once again language is skill, but here listening and reading is just formalities. Listening and speaking, जैसे आप अगर मेरी भाषा को सुन रहे हैं, मेरे लैंग्वेज को सुन रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे, आपके कंट्रोल में नहीं है. You cannot change, जो मैं बोलूँगा वही सुनेंगे, है ना. लेकिन जब हम स्पीकिंग और राइटिंग की बात करते हैं, I can change my language. मैं अपना जो लैंग्वेज अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ. Whatever written here it doesn't matter. I can change my language because I have as a fluent in speaking as well as writing. Writing is concerned, there is an accuracy, there is a need of grammar. जब आप किसी भाषा को लिखते हैं तो उसमें ग्रामर आपका बहुत हेल्प करता है, उसमें एक्यूरेसी चाहिए. Because it will take time. जब आप लिखते हैं किसी स्किल्स को तो उसमें आप अपने जो न्यूरल्स हैं उसको मैसेज देते हैं what we have to write in the answers. लेकिन जब आप स्पीक करते हैं तो वहाँ पर you cannot give sufficient time for your neurons that neurons can respond you immediately. वो आपके मन में जो आता है immediately you just go and fluent him. तो fluent में यहाँ पर speaking as well as writing दोनों जो है fluent है, but writing is concerned accuracy is very important as well as grammar is very important. Listening and speaking are known as primary skills. सबसे पहला जो स्किल्स है, अगर ये 4 स्किल्स पे मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है दैट इज प्राइमरी स्किल्स, है ना. दिस मस्ट बी डेवलप फर्स्ट. सबसे पहले इंसान में सबसे पहले जो डेवलपमेंट होती है वो प्राइमरी स्टेज में लिसनिंग एंड स्पीकिंग आती है. उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग आर आल्सो रीइंफोर्समेंट. Because writing is a reinforcement, it is in control of you, so you can force them to how to write them, how to speak them. So these two are not a primary, this is the secondary stage of learning. So one by one I can elaborate all the skills. First is listening. Listening is, what is the listening skills? So just I elaborate this listening is, it is an oral input. ये किस तरह का इनपुट है, ये सुनने. oral क्या होता है, oral is different, O-R-A-L is different, but this is an oral, A-U-R-L. It means you listen the things. यानी एक ऐसा चीज है, listening क्या ऐसा इनपुट है, वो oral है ना. It involves a sender और इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंडर होते हैं, एक रिसीवर होते हैं. उसके बीच में ओनली कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेज होता है ना. स्पीच रिदम प्रोनाउंसिएशन, इसमें स्पीच का होना बहुत जरूरी है. लिसनिंग बिना स्पीच के संभव नहीं है. जैसे कि मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप लिसन करेंगे जब मैं बोलूँगा तब. रिदम और जो भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ इसके बाद 2 सेंटेंस या 4 सेंटेंस कुछ अलग बोलूँ, ये नहीं होगा. मतलब दोनों का जो रिदमिक है वो एक होना चाहिए. तो स्पीच एंड रिदम इज इम्पोर्टेंट इन लिसनिंग. And third part is pronunciation. When you listen things properly, because somebody is spelling or pronunciation is very good. As well as the language is concerned, whether अगर English teacher है, अगर हिंदी teacher है, उनका अगर pronunciation अगर सही नहीं है, तो बच्चे आपको follow नहीं करते, है ना. वो आप concentrate नहीं कर सकते. जब आपका pronunciation ही गलत है ना, तो वहाँ पर आप सुने. जैसे कि बहुत सारे टीचर जो है प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, दिस इज अ रॉन्ग वर्जन. इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, है ना. इसको बोलते हैं. बहुत सारे बच्चे को अभी भी याद है वेडनेसडे, वेडनेसडे जबकि होता है वेडनेसडे, है ना. तो प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही करेंगे तो आपका स्किल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग. जब आप किसी
वो लिसन कर सकता है। लिसनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एप्रोप्रिएट मॉडल भी होना जरूरी है ना। जैसे कि कोई बहुत अच्छे लीडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। इसी तरह से बहुत अच्छे लीडर हैं जो एप्रोप्रिएट मॉडल के रूप में, नरेंद्र मोदी, ये सब जब भाषण देते हैं तो उनके हर एक शब्दों को, हर एक सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो लिसनिंग स्किल डिपेंड ऑन योर एबिलिटी, इसके प्रोनाउंसिएशन, स्पीच, रिदम और इसके साथ साथ आपकी एबिलिटी दिखाई पड़ती है। ओके, एज फार एज कंसर्न इज, मैंने स्पीच बोला है लिसनिंग में, जहां पर कोडिंग और डिकोडिंग की बात की है। कोडिंग का मीन्स है जैसे कि कोई स्पीकर है, दैट इज नोन एज कोडिंग। और जब कोई स्पीकर कोई मैसेज देता है तो somebody else is receiver, उस मैसेज को रिसीवर करते हैं। लेकिन ये जो मैसेज देते हैं उसमें वो इनकोड करते हैं। वो क्या करते हैं? इनकोड करते हैं। मतलब कुछ ऐसा चीज बताते हैं जिससे कि जो सुनने वाले हैं, रिसीवर हैं, उनको आसानी से वो कैच कर सकते हैं। और फिर जाकर के रिसीवर उसको क्या करते हैं? डिकोडिंग करते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप स्पीकर और लिसनर के रूप में काम करते हैं। कोडिंग डिपेंड करता है स्पीकर पर, उसके बाद उन्होंने मैसेज को प्रोवाइड किया, उन्होंने उसको इनकोड किया, और जब रिसीवर जब उसको रिसीव करते हैं तो वो डिकोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखते हैं तो देखने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन पर दवा लिखते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या हो गया? जस्ट ए स्पीकर, कोडिंग का काम किया, और स्पीकर ने क्या मैसेज दिया, उस प्रिस्क्रिप्शन पर आपकी क्या दवा लिखी, वो एक मैसेंजर के रूप में, मैसेज के रूप में आपको दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर इनकोडिंग की बात है तो उस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर कुछ ऐसा कोड लिखता है, शॉर्टकट लिखता है जो सभी को नहीं पता चलता है। वो किसको पता चलता है? जो रिसीवर है, यानी केमिस्ट, जो दवा खाना है जहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उसको रिसीव करते हैं, और वो रिसीव करते हैं और वो जाकर के फिर डिकोड करते हैं। उनको समझ में आता है कि डॉक्टर साहब ने कौन सा दवा लिखा है। That is known as a decoding. There is a two type of approach. एक है bottom up approach. जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ से सीखते हैं? जिसको कहते हैं bottom up approach, यानी नीचे से लेकर ऊपर की तरफ आप जाते हैं, है ना। तो bottom का मतलब नीचे और up का मतलब ऊपर। जब आपका अप्रोच bottom up हो तो वहाँ से लर्निंग बिगिनिंग से लेकर के लास्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कोई भी पर्सन जो है अल्फाबेटिकल से शुरू करते हैं, उसके बाद वो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद वो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के वो एक पूरा स्टोरी जो है उसको कनेक्ट कर पाते हैं। दिस इज नोन एज ए बॉटम अप अप्रोच। तो स्किल्स में आपके बॉटम अप अप्रोच और दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच। जो अभी मैं नीचे से ऊपर गया था वही ऊपर से नीचे, यानी अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप उसको ऊपर से नीचे भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कोई स्टोरी आपने सीखा, अब उस स्टोरी को आप फॉलो करके उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटेंस से फिर आप उसको वर्ड्स में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अल्फाबेट बना सकते हैं। सो टू वे प्रोसेस लर्निंग, जहाँ पर स्किल्स को आप बॉटम अप एज वेल एज टॉप डाउन अप्रोच। First was listening skills, second we are elaborating that is speaking skills. It is a productive or expressive skills. जैसे कि शुरू में ही बोला कि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जनरेट नहीं करेंगे या प्रोड्यूस नहीं करेंगे, that is known as ये प्रोडक्टिव स्किल्स है। आपको प्रोड्यूस करना होगा। It is a fundamental to human communication in daily life. और बिना स्पीकिंग का कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं किया जा सकता है। Okay? Now speaking situation, तीन टाइप के स्पीकिंग सिचुएशंस हैं। That is the first is interactive. Interactive स्पीकिंग किसको बोलते हैं? जब आप कुछ बोल रहे हैं और उधर से कोई रिस्पॉन्ड आ रहा है। This is a two-way interaction. That is called interactive situation. Second one is partially interactive. जब आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन हो सकता है कि somebody is responding और somebody is not responding. That is called partial interactive. और थर्ड है नॉन इंटरैक्टिव, यानी आप सिर्फ बोल रहे हैं और कोई उसका जवाब नहीं देता। मोस्टली जैसे आप न्यूज़ में समाचार सुनते हैं, है ना, कोई ऐसा कोई सीरियल वगैरह
इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब जो न्यूज़ बोल रहा है उसको आप अच्छा है कि गलत है आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो देयर इज नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशन। सो तीन टाइप की सिचुएशन है स्पीकिंग सिचुएशन में, इंटरेक्टिव, पार्शियली और नॉन इंटरेक्टिव। थर्ड पार्ट इज रीडिंग स्किल्स। ये बहुत छोटा है, ये जो अभी जो मैं ये सेशन कर रहा हूँ दिस इज वेरी स्मॉल, ओनली 4 ही चीज पढ़ना है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछूंगा वो आपको समझ में आना चाहिए। थर्ड वन इज रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स को मैंने कैसे बोला है? रिसेप्टिव। मैंने किसको बोला है? वाला लिसनिंग और रीडिंग। ये जो है रिसेप्टिव स्किल्स है जो कि रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, फोनेटिक एज वेल एज जो हम लोग जो अभी रिटन लिखते हैं या अगर साउंड से सुनते हैं उसको हम लोग रीडिंग स्किल्स बोलते हैं। तो रीडिंग स्किल इज ए रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म। नाउ टाइप्स ऑफ रीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ रीडिंग, प्लीज स्विच ऑफ मोबाइल। इसको सर व्हाट इज लाउड रीडिंग? लाउड रीडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाउड रीडिंग। व्हाट इज लाउड रीडिंग? जोर से पढ़ना। इसको हिंदी का सही शब्द क्या बोला गया है? नहीं बताएं। स्वर इज ए लाउड रीडिंग। जब बच्चे को हम लोग बोलते हैं क्लास में कि जोर जोर से रीडिंग करने को, तो क्या करते हैं? वो जोर जोर से पढ़ते हैं, है ना? वो गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको बोला जाता है लाउड रीडिंग। कम से कम उनका जो ऑडियो है इट इज अप्रोचेबल और बहुत सही होना चाहिए, इसके लिए लाउड रीडिंग होता है। साइलेंट रीडिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइलेंट? मौन रीडिंग। जब हम लोग साइलेंट रीडिंग आप कब करते हैं? क्योंकि आपका ध्यान इधर नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मौन रीडिंग किसको करते हैं? मौन रीडिंग आप किसको समझते हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड मौन रीडिंग? साइलेंट लिखना याद लिखना तो है ही नहीं। रीडिंग अब कैसे आप समझती हैं? आप नहीं समझ सकती हैं, आपने उसको बोल दिया। बच्चा खुद जब तक रीडिंग जो है ये क्या होता है? फास्ट रीडिंग होता है ना? बच्चे को आप रीडिंग करने के लिए दे दिए तो हो सकता है कि 1 to 1 वो कनेक्ट नहीं है, वो ऊपर देख करके भी पढ़ सकता है। तो जो आपको मैंने बोला लाउड रीडिंग और दूसरा साइलेंट रीडिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस। लाउड रीडिंग में 1 to 1 वर्ड इज कनेक्टेड विद सेंटेंस, वहां पर कोई बच्चा छोड़ नहीं सकता। अगर वो छोड़ेगा तो तुरंत टीचर जो है उसको लेकिन जहां पर साइलेंट रीडिंग अगर बात करती है तो साइलेंट रीडिंग में क्या होता है? दे कैन गो फास्ट, है ना? जब वो बोला गया पढ़ना है, हाँ सर पढ़ ली, है ना? पढ़ ली, लेकिन वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड और चिल्ड्रन व्हिच इज रीडिंग देयर। तो लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। थर्ड इज इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव हाँ, गहन। हिंदी में आप सब भूल गए हैं लेकिन हम इंग्लिश से हिंदी में आ गए हैं, है ना? तो गहन जिसको कहते हैं गहन पढ़ाई। गहन पढ़ाई जिसको कहते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग जो 9th-10th में कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं विष्णु? गद्यांश। वेरी गुड। गद्यांश जो आप देते हैं तो गद्यांश बच्चे को 1 to 1 पढ़ना रहता है। किसी को बोलते हैं इंटेंसिव, क्योंकि अगर वो एक लाइन भी अगर छोड़ देगा तो हो सकता है कि उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज, एनी पैसेज व्हिच इज रीडिंग बाय स्टूडेंट और चिल्ड्रन to give their appropriate answer, intensive reading is required. वहाँ पर intensive reading बहुत जरूरी है। And last is extensive reading. Extensive reading किसको बोलते हैं? Extensive, intensive को ही विस्तृत बोलते हैं। गहन। Intensive मतलब गहराई में जाना। Intensive गहन। एक्सटेंसिव कहते हैं ऊपर पढ़ना, एक्सटेंसिव कहते हैं एक्सटेंसिव, है ना? हाइलाइट्स को देखना, हाँ हाइलाइट्स को देखना, है ना?
बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जब उनको आप बोलिएगा कि इसका आंसर देने के लिए, तो वो जल्दी करने के फिराक में ऊपर ऊपर हाँ ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, लेकिन उनका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्होंने इंटेंसिव रीडिंग की जगह एक्सटेंसिव रीडिंग की। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग। याद रखिएगा 4 तरह के रीडिंग होते हैं, जिसमें लाउड, साइलेंट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ओके, चलिए इंटेंसिव रीडिंग, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। अब यहाँ पर मैं आपको दो जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में नहीं समझ में आ रहा था, उसको मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। ये किस तरह का रीडिंग है? इट मींस रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल। किसी भी आप टेक्स्ट को पूरी अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके जब पढ़ते हैं, तो इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। इट इज अ डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, मतलब इसका पूरा डिटेल आप पढ़ जाते हैं, कोई चीज छोड़ते नहीं है। दूसरा, इट इंक्रीजेस द एक्टिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी, ये दो वर्ड है। एक्टिव वोकैबुलरी क्यों करते हैं कि जो आप डेली वर्ड को देखते हैं वो तो कम से कम आपसे छूटेगा नहीं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं आता है, तो इंटेंसिव में भी वो छूट जाता है, सिर्फ आप उसको रीड कर लेते हैं। लेकिन इंटेंसिव वोकैबुलरी जो है, एक्टिव वोकैबुलरी जो है, वो वर्ड है जो आपको मालूम है पूरी तरह से, है ना, उसको आप स्किप नहीं करते हैं, उसको आप जरूर कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के साथ जब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, है ना। तो इट इंक्रीज द एक्टिव वोकैबुलरी। और लास्ट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइजली। मतलब हर एक चीज को, जैसे 2 लाइन 3 लाइन पढ़ने के बाद आपको उसका मीनिंग जो है पूरी पूरी समझ में आता है जब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। ओके, लेकिन जब मैं आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करता हूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट मींस नॉन डिटेल स्टडी, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज नॉन डिटेल। इट फोकस ऑन मेन पॉइंट। कुछ पॉइंट जो है, जैसे फर्स्ट अगर पैराग्राफ है, उसमें जो मेन जो चीजें ऊपर से दिख रही है ना, मतलब बदमाश है लड़का, कि अच्छा है, कि नटखट है, ये सब चीज आपको समझ में आएगा। मतलब शॉर्ट में पढ़ करके कम से कम स्टोरी को समझ जाते हैं, वो आप कैसे समझते हैं? जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। लेकिन जब आपको आंसर देने के बाद किया जाता है, जब कोई कहता है कि हम इसके बाद आपसे आंसर पूछेंगे, जैसे मैंने कहा कि अभी लास्ट में मैं आंसर पूछूंगा, तो आप लोग क्या है, इंटेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं, इंटेंसिव लिसनिंग, है ना। आपका ध्यान नहीं है विष्णु सर? अच्छा, तो आप एक्सटेंसिव लिसनिंग का काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको डाउट हो रहा है। क्वेश्चन आप ही के पास बहुत सारा जाएगा, है ना। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव थोड़ा सा हमको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए विष्णु सर, क्या मैंने बताया? इट इंक्रीज पैसिव वोकैबुलरी। इसमें जो है पैसिव वोकैबुलरी, इसमें एक्टिव वोकैबुलरी नहीं, पैसिव वोकैबुलरी। बहुत सारा वर्ड जो है आप कभी कभी देखे हैं, जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो कभी कभी वैसा वर्ड जो मिलता है आप उसको यूज ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। अपने डेली एक्टिविटी में वैसे वर्ड्स को आप यूज नहीं करते, इसको करते हैं पैसिव वोकैबुलरी। इट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड प्लेजर। सिर्फ आप मनोरंजन के लिए, अगर नॉवेल पढ़ने के लिए दिया जाए विष्णु सर को, तो वो हमेशा एक्सटेंसिव ही पढ़ेंगे, ऊपर ही ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि पहला तो टारगेट है कि आपको स्टोरी जानना है ना। उसके बाद बार बार देखेंगे कि अभी कितना पेज बचा हुआ है ना, इसको कितना जल्दी खत्म करना है ताकि दूसरा नॉवल मिल जाए। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, जिसमें कि आपका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया, नॉवल पढ़ने के बाद किसी से कोई क्वेश्चन पूछता है नहीं पढ़ता है, वहां पर वैसा रीडिंग जो है दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव। लेकिन जब इंटेंसिव रीडिंग है, जब एग्जाम है, किसी बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन का उसका आंसर देना है, तो पूरा आंख ऐसे कर करके वो जो है एक एक चीज देखेगा, सरसरी निगाह से देखेगा, दैट इज नोन एज इंटेंसिव। चलिए, नाउ द सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने का and some skills of reading, that is there is a 4: previewing, predicting, scheming and scanning। ये 4 चीज जो है ये सब स्किल्स कहलाते हैं किसके? रीडिंग के, है ना। एंड लास्ट वन इज राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या है? इट इज a skill which enables to learner to brainstorm। जब आप कुछ लिखते हैं, किसी चीज का आंसर देते हैं, तो अपने ब्रेन का पूरा यूज करते हैं, कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग लैंग्वेज।
ये लर्निंग कैसा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब पूरा दिमाग उस पर लिखता है। ऐसे भी अगर आपको कुछ लिखने दिया जाए तो आप बहुत थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं उसके बारे में, जिसके कारण आपका आंसर जो है बहुत ही एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होता है। तो फर्स्ट है ब्रेन स्टॉर्म, दूसरा यू कैन पुट ऑल आइडियाज विच इज कैपेबल इन यू, जो आपके अंदर है वो सारा आइडियाज। थर्ड इज ऑर्गेनाइज देम, आप उसको सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे आप पॉइंट में लिखते हैं, जब आप बोलने की बात आती है तो आप पॉइंट वाइज नहीं बोलते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है देयर इज सफिशिएंट टाइम व्हेन यू राइट योर आंसर यू गिव पॉइंट वाइज आंसर, दैट इज नोन एज ए ऑर्गेनाइज देम। यू कैन ड्राफ्ट, लर्निंग में क्या है, दैट यू कैन ड्राफ्ट एनीथिंग, किसी भी चीज को आप एलोबरेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, काट सकते हैं। एंड रिवाइज इज हर वर्क, या अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसके जगह पर फिर दूसरा आंसर लिख दो। ज्यादातर बच्चे जो राइटिंग में ऐसा ही करते हैं कि एक बार उनको आंसर सही नहीं लगा, या उनको लगा कि ये आंसर मैं गलत लिखा हूं, और दूसरा से पता चला कि आंसर अच्छा लिखा, तुरंत अपना काट करके दूसरा का कॉपी कर लिया, है ना। तो दिस इज राइटिंग स्किल्स, है ना। राइटिंग स्किल्स में आप किस किस चीज पर ध्यान देते हैं, दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, मतलब सब स्किल अगर राइटिंग का पूछा जाए तो दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या है, जब आप अपने आंसर्स को, अपने सेंटेंस को अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, अपने ओन शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं, दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग, है ना। दूसरा चीज है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, नथिंग बट द शॉर्ट पैसेज, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैसेज इज रिटन। जैसे कोई स्टोरी है, कोई पोएम है, वो पूरा डिटेल है, अगर उसको समराइजिंग करने के लिए कहा जाए उसी का आप पूरा पूरा कटेल करके उसको पेस्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज समराइजिंग। सो टू थिंग एज अ सब स्किल, फर्स्ट इज पैराफ्रेजिंग एंड सेकंड इज समराइजिंग। So that is 4 type of skills, that is listening, उसके बाद speaking, reading and writing, ये 4 skills मैंने अभी बताया। Now the session is for question answer। अब आपके सामने कुछ questions मैं रख रहा हूँ, one by one I will give you answers, है ना। Which of the following skills are known as primary skills? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे primary skills कौन है। आपके पास ऑप्शन है listening and speaking, ध्यान सुनिएगा, because I am sorry the image is not available here। Listening and speaking, first option आपका है listening and speaking, second है listening and writing, third है writing and reading, और fourth है speaking and writing। 4 ऑप्शन आपके पास है। Listening and very good, this is a primary skills, listening and speaking। मैं आपको जोर से बोला था कि प्राइमरी स्किल्स कौन होते हैं, तो एक जो लिसनिंग होते हैं और दूसरा स्पीकिंग, जो कि रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स, जिसको आप सुनते हैं ऐसे, है ना, तो चेंज नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अंडर विच एक्टिविटी टू रिकॉग्नाइज साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। आप कौन सी एक्टिविटी, मैं आपको 4 एक्टिविटी का नाम बता रहा हूँ, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो LSRW है। ये LSRW में कौन सा एक्टिविटी या कौन सा एक्टिविटी है जिसमें आप पहचानते हैं साउंड के द्वारा और उसको मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं, है ना, रिड्यूस करते हैं मीनिंग। ऐसा कौन सा स्किल है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग? लिसनिंग इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जब तक आप साउंड को सुनेंगे नहीं उसको आप मीनिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। और ऐसे भी लिसनिंग जो है, लिसनिंग जब लिसनिंग में क्या होता है, सिर्फ साउंड ही होता है, फोनेटिक्स। लिसनिंग इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड। साउंड में आई हैव टोल्ड यू दैट इज फोनेटिक। फोनेटिक मींस साउंड। तो ओनली साउंड इज यूज्ड इन विच स्किल। मेरा क्वेश्चन है कि कौन से स्किल में आप साउंड को यूज करते हैं टू कन्वर्ट इन देयर मीनिंग्स, मतलब उसको साउंड सुन करके आप उसको मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं। राइट आंसर इज लिसनिंग।
थर्ड क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। अगर इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, द लर्नर शुड, मतलब जो सीख रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है नो हाउ टू राइट द वर्ड्स, दूसरा है नो द स्पेलिंग, मीनिंग एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। सेकंड, अभी तो मैं दो ही बोला हूँ, दो और बोलना है। थर्ड है नो द मीनिंग्स ओनली और फोर्थ है नो द स्पेलिंग। वेरी गुड, सेकंड आंसर इज एब्सोल्यूट राइट। जहाँ पर आप बच्चे को स्पेलिंग भी सिखाते हैं, अगर कोई एरर वगैरह है तो स्पेलिंग के कारण वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा, है ना। आप कोई भी वर्ड लिखते हैं तो आप उसी को लिखते हैं और उसको जब बोलते हैं तो जो उसी वर्ड का लेटर को पढ़ते हैं तभी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन सही होने के लिए स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। बच्चे को हम लोग स्पेलिंग एरर सिखाते हैं, उसका मीनिंग भी जानना जरूरी है एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस ये भी सिखाते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। कैसे पढ़ाना चाहिए प्राइमरी टीचर्स को। जब आप पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो उसमें ऑप्शन आपके पास है स्टोरी के साथ पढ़ाना चाहिए या पिक्चर बुक्स के साथ पढ़ाना चाहिए या अल्फाबेट बुक के साथ पढ़ाना, अल्फाबेट बुक्स ओनली होना चाहिए या फोनिक टीचिंग होना चाहिए। चार मैं सिर्फ प्राइमरी टीचर से पूछ रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। प्राइमरी टीचर, वेरी गुड, एब्सोल्यूट राइट। क्योंकि पिक्चर से बच्चे जो है जल्दी कैच करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर A फॉर एप्पल लिखा हुआ है तो सिर्फ अगर अल्फाबेट अगर हम उसको दिखाएंगे तो इट विल टेक टाइम टू लर्न। लेकिन अगर अल्फाबेट के सामने अगर सेब का अगर पिक्चर रहता है तो बच्चे अल्फाबेट को नहीं देख करके पहले सेब देखते, मैम को तुरंत आंसर दे देगा सेब देख करके। मैम सेब होता है, एप्पल है ना। अगर आप वहां पर गलती से कोई एनिमल का नाम रख दीजिए तो एनिमल ही बता देगा जब तक आप उसको बताएंगे। तो पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे हम लोग भी जो पढ़ाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये मैटर नहीं करता है, ये अंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजिकल है कि जो चीज आप विजुअली आप पढ़ाते हैं इट विल गिव मोर रिस्पॉन्स टू योर स्टूडेंट्स। आपका लेक्चर हो सकता है मैं जितना बात बताया उसमें से आप 90% भूल गए हो, लेकिन अगर हाँ विजुअल, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं, आप दोनों काम कर रहे हैं, एक तो लिसन कर रहे हैं और दूसरी चीज आप विजुअलिटी, आपको सबसे क्लैरिटी है। जैसे अभी आप विजुअल नहीं हो रहा है तो मैं उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर ये विजुअल रहता तो आपको चीजें और भी आसान होता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर अभी तक तो सब सही है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ए, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। लिसनिंग मतलब जो सुनते हैं और कॉम्प्रिहेंशन किसको बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल है ना, जो ट्रेडिशनल आ रहा है, मतलब कोई भी चीज आप ट्रेडिशनली सुनते आ रहे हैं तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें हियरिंग स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है और प्रोडक्टिव स्किल। लिसनिंग कौन सा स्किल है, रिसेप्टिव। वेरी गुड। अभी तक तो सारा चीज का मतलब है कि मैंने जो आपको बताया है वो 100% सही बताया है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं इट मींस कि माय स्पीच इज नॉट एज मच एज मीनिंगफुल टू यू व्हेन यू आर नॉट गिविंग आंसर। सो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ए रिसेप्टिव स्किल। वेरी गुड। लर्निंग टू रीड मींस, लर्निंग टू रीड जब आप किसी चीज को पढ़ करके समझते हैं, याद करते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन है वो कौन सही होगा, रीडिंग अलाउड, डिकोडिंग लेटर्स टू अल्फाबेट इनटू साउंड, डिकोडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड डिकोडिंग द मीनिंग। सेकंड क्या था, सेकंड है डिकोडिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इनटू साउंड, decoding the meaning. Decoding the meaning. Decoding the meaning. Decoding the meaning.
डिकोडिंग द मीनिंग, एकदम सही बोला है सत्येंद्र सर ने, आंसर बहुत ही अच्छा दिया है, डिकोडिंग द मीनिंग। यानी आप देखिए, कोई अगर आपको बोले, जैसे मैंने डॉक्टर का जो एग्जांपल लिया था, आप उसको ध्यान से देखिए। डॉक्टर क्या है? स्पीकर, मतलब लिखता है, मैसेज क्या लिखा? प्रिस्क्रिप्शन लिखा। अब वो इनपुट कर दिया, कुछ भी लिखा है ऐसा जो कि रिसीवर को पता चलेगा, है ना? तो जैसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन देखा तो समझ में आ गया कि डॉक्टर साहब का ये सब चीज है, वो तुरंत उतनी सारी दवाएं निकालने लगा, यानी डिकोडिंग करने लगा। तो डिकोडिंग द मीनिंग का मतलब, अगर आप कोई चीज रीड कर रहे हैं, आप वो आपको समझ में आ गया, लर्न कर लिए, इसका मतलब उसका मीनिंग समझ में आ गया। सो वेरी स्मार्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड ए टेक्स्ट फॉर्म। इंटेंसिव रीडिंग, अब यहाँ पर दो जो मैंने बताया था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, आप ध्यान से सुनिए। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? हेल्पिंग द लर्नर्स रीड ए टेक्स्ट फॉर, यहाँ पर ऑप्शन है इंप्रूविंग स्टडी स्किल, मतलब अगर आप इंटेंसिव स्किल रीडिंग करते हैं तो आपका स्टडी स्किल इंप्रूव करेगा। दूसरा एक्यूरेसी होगा। तीसरा प्लेजर ओनली, मतलब आपको सिर्फ आनंद मिलेगा। या चौथा इंफॉर्मेशन। सेकंड होगा सर। सेकंड एक्यूरेसी, आपका करना है एक्यूरेसी। इधर से मैम, आप समझ, क्वेश्चन समझ में आया? मैंने 4 तरह के इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, है ना, लाउड और साइलेंट, ये 4 तरह के रीडिंग मैंने बताया, जिसमें से लास्ट 2 है, उसी में से एक क्वेश्चन है इंटेंसिव रीडिंग। जब आप किसी चीज का गहन अध्ययन करते हैं तो लर्नर जो पढ़ रहे हैं, पढ़ करके टेक्स्ट को क्या समझते हैं, इंप्रूव करते हैं अपना स्टडी स्किल, या एक्यूरेसी होती है, या प्लीजर ओनली, आनंद उनको मिलता है। एक्यूरेसी, स्टडी स्किल्स, इसमें से आंसर आप सबका गलत है। आप प्लेजर होगा सर क्या? प्लेजर एक्सटेंसिव में होता है ना, इसलिए आपका भी आंसर गलत। तो यहाँ पर लास्ट है इंफॉर्मेशन। आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जब आप इंटेंसिव पढ़ाई करते हैं, मतलब 1 to 1 वर्ड और 1 to 1 सेंटेंस कनेक्ट करते हैं, तो आप सारा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जैसे मैंने बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन दिया, बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन देने में मैंने बोला कि इस पर 10 क्वेश्चन है, तो वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो पूरा पैसेज पढ़ेगा। ईच वर्ड, मतलब वो आइए आ गया। हाँ, वो मतलब इंटेंसिव, उनका जो पढ़ाई होगा वो इंटेंसिव होगा। किसी ने आंसर दिया था एक्यूरेसी, लेकिन एक्यूरेसी रीडिंग में नहीं होता है, एक्यूरेसी राइटिंग में होता है। एक्यूरेसी जो है वो राइटिंग में होता है। आपको इंफॉर्मेशन जो है, जो चीज आपको चाहिए, मतलब आप पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको कंटेंट्स है, तो आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं क्योंकि आपको जो थॉरो नॉलेज चाहिए, एक एक चीज चाहिए, तब आप जाकर 10 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या मैम? हाँ, तो इसके लिए आपको ये 4 ऑप्शंस में जो लास्ट है इंफॉर्मेशन, यानी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग व्हेन यू ट्राई फॉर द इंटेंसिव स्किल्स, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तक 9 क्वेश्चन में ये गलत हुआ है। हम प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। बिस्किट जो है, बिस्किट मंगाइए, हमारे अस्सी में है। Next question is, please ma'am, ये एडिटिंग नहीं होगा, ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। ये 2 वर्ड मैंने बोला था, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटजी। ये कौन सा स्ट्रेटजी है आपको बताना है। स्पीकिंग में ऑप्शन आपके पास स्पीकिंग है, दूसरा है थिंकिंग, तीसरा है रीडिंग और चौथा राइटिंग। ये 2 वर्ड मैंने किस स्किल्स में बोला था?
स्कैनिंग एंड स्कीमिंग, 2 वर्ड्स, ये 2 स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको बताना है कि ये 2 स्ट्रेटजी किस स्किल में ज्यादा यूज होता है। आपका आंसर है स्पीकिंग, थिंकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आंसर इज करेक्ट। रीडिंग में आपका ये 2 स्ट्रेटजी आता है, जहां पर कि स्कैनिंग और स्कीमिंग। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ। स्क्रिबलिंग अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो आंसर नहीं आएगा। स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ, स्पीकिंग का स्टेज है कि लिसनिंग का है कि राइटिंग का है कि रीडिंग का। जिनको आता है वो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। स्क्रिबलिंग बोलते हैं कि अगर आपको कुछ लिखने नहीं आता है, जैसे बच्चे को क्या होता है कि अगर आप पेन दे देंगे, अगर आप पेन हाथ में दे देंगे तो कुछ ना कुछ लिखेगा। उनकी एक्टिविटी कुछ ना कुछ होगी, जैसे नहीं वो पेपर और पेन देखेगा, बच्चे उसमें कुछ न लिखेंगे, चाहे वो गोल गोल बनाएगा या ऐसे करेगा, है ना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्क्रिबलिंग, जो राइटिंग में होता है। राइटिंग इट इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग। ओके, स्कैनिंग इज a reading activity which helps the learner to dash from the text। टेक्स्ट में से क्या निकालना है। अगर मान लीजिए स्कैनिंग हम कर रहे हैं तो स्कैनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, लर्नर को क्यों जरूरत पड़ती है। आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, ड्राउ आउट इंफॉर्मेशन, देखते हैं अरुणिमा जी कितना मार्क मिला, कहाँ से आई है इसकी, डेवलप competence in the linguistic term, know the meaning of the word and enrich the vocabulary। Draw information, draw out information, क्या बात कीजिए बाहर। know the meaning of word, एकदम सही, know the meaning of the word। यानी जब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, स्कैनिंग क्यों यूज होता है। स्कैनिंग जब तक आप उसको, जैसे कि अगर आप स्कैनिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आ जाता है, तो इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, आप उसका मीनिंग समझ रहे हैं, मीनिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स, है ना। राइटिंग जो परंपरा है, कन्वेंशन किसको कहते हैं, परंपरा। तो ये जो राइटिंग की परंपरा है वो 4 ऑप्शन क्या सही है। फर्स्ट है स्टोरी आइडिया, सेकंड इज प्रॉपर पंक्चुएशन, थर्ड इज इमेजिनेशन और फोर्थ इज गुड वोकैबुलरी। जो सही आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, प्लीज लिसन एवरीबॉडी। कन्वेंशन ऑफ राइटिंग, इसमें प्राइज है। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग यानी जो लिखने की जो परंपरा है उसमें से कौन सही है, स्टोरी आइडिया की, सेकंड प्रॉपर पंक्चुएशन या इमेजिनेशन या फोर्थ है गुड वोकैबुलरी। 3 नंबर इमेजिनेशन, यस सर, इमेजिनेशन और आप इमेजिन नहीं कर पाइए तो नंबर बताइए कौन सा है। ऐसा कीजिए, कुछ 1 बोल दीजिए, कुछ 2 बोल दीजिए, 4 4 में तो सही हो ही रहेगा। और उसमें से जो गिफ्ट देंगे सब बात कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि राइटिंग की जो परंपरा है उसमें से कौन सबसे ज्यादा सही है। जो पहले से लिखते हुए हम आ रहे हैं उसमें से हम सबसे ज्यादा गौर किस पर करते हैं, स्टोरी आइडिया पर कि प्रॉपर पंक्चुएशन पर, इमेजिनेशन पर या गुड वोकैबुलरी पर। इमेजिनेशन पंक्चुएशन कौन बोल रहा है, प्रॉपर पंक्चुएशन। हाँ, क्यों आपने चुना ये सही आंसर है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ प्रॉपर पंक्चुएशन क्यों। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ प्रॉपर पंक्चुएशन हुआ क्या। वेरी गुड, एब्सोल्यूट राइट पूजा मैम, है ना। प्राइज गोज टू पूजा मैम, है ना। प्राइज में क्या है सर? प्राइज में अजीब का खाना मुफ्त। प्रॉपर पंक्चुएशन उसको बोलते हैं जैसे आप कोई राइटिंग लिखे, जब तक आप फुल स्टॉप नहीं दिए, कॉमा नहीं दिए, सेमीकोलन नहीं दिए, अगर इंट्रोगेटिव मार्क्स है वो नहीं दिए तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है।
ये आप शुरू से बच्चे को बताते आ रहे हैं और ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो कन्वेंशन ऑफ राइटिंग डिपेंड्स ऑन प्रॉपर पंक्चुएशन। So this is the end of my session. Thank you. You have given so much time, and I am very much thankful to all of you. Okay, thanks.